हेलो एवरीवन। दोपहर की थोड़ी सी नींद तो आ रही है बट वी विल कीप डूइंग इट। एंड आज का चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आई मीन थोड़ा सा से ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। सो आई थिंक इट विल टेक 1.5 hours to complete. And in organizing, we see the syllabus, understanding the concept of organizing at a structured process. Importance of organizing, steps in the process of organizing, describe functional and division structure, advantage and disadvantages and suitability of functional and division structure, concept of formal and informal organization, advantage and disadvantage of informal organization, formal and informal organization, delegation concept elements importance, uh, decentralization concept importance, and difference between delegation and decentralization. Okay, it should be considered a big chapter according to me. And yeah, let's go. 30 pages chapter. If you go 3 pages per chapter, it will take 90 minutes. That is 1.5 hours. Once the plans are laid down and objectives are specified therein, the next step is to organize resources in a manner which leads to the accomplishment of goals. ये कहाँ से शुरू हो गया यार? चलो कोई बात नहीं. A critical issue in accomplishing the goals specified in the planning process is structuring the work of an organization to adapt a dynamic business environment. The activities of an enterprise must be organized in such a manner that the plans can be successfully implemented. For planning to be fruitful, number of considerations like resources will be needed, optimum utilization of the same translation of work into attainable tasks, empowering the worker. But as simple as these tasks need to be understood and dealt with properly. It is evident from the way Wipro has moved, blah blah blah. देखो Wipro का example हम नहीं पढ़ने वाले हैं because we have less time, and these are fast track. The management function of an organization ensures that efforts are directed towards the achievement of goals laid down in the planning function in such a manner resources are used optimally and public are able to work collectively and effectively for a common purpose. Okay, thus it is in the context of effective management that the organization function earns due importance. It is a means for translating plans into action. ठीक है, तो organizing, what does organizing do? Organizing converts the plan into a um, action. I mean, it is the starting process of converting the plan into an action. The organizing function leads to creation of an organizational structure which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that ambiguity in process programs of duties can be eliminated. Ambiguity हटाता है. Not only is this important for productive cooperation between the personnel, but also clarification for extent of authority as well as responsibility for results as a logical group of activities. मीनिंग समझना है. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स प्लेस. ठीक है भाई. How have you paid attention to how the school feat which you enjoy so much actually takes place? What goes on behind the scene to make it? मतलब मैं ही तो करवाता हूँ, मेरे को क्यों नहीं पता होगा. The whole activity is divided into task groups, each dealing with a specific area of the food committee, like decoration committee, like ticketing committee, and so on and so forth. These are under the overall supervision of the official charge of the event, that is head boy. Coordinating relationships are established among the various groups to enable smooth interaction and clarity about each group's contributing towards the event. All the above activities are part of the organizing function. Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both united whole to be utilized for achieving objectives. Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results that are goals. Steps in the process of outsourcing. Organizing. ये अच्छी थोड़ी बात लगी कि इनने सीधा स्टेप्स पे आ गए. वरना ये लोग क्या करते हैं, पहले मीनिंग बताएंगे, फिर फीचर बताएंगे, फिर इंपॉर्टेंस बताएंगे, फिर जाकर स्टेप्स पे आएंगे. तो ये थोड़ा बेकार सा लगता है. ये अच्छा है कि सीधे स्टेप्स पे आ गए. इसका आपका आइडिया होता है आइडिया, लाइक आइडिया. ID EA को रिवर्स कर दो तो वो बन जाएगा आपका आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप्स. ठीक है.
Steps in the process of outsourcing. Organizing involves a series of steps. फिर से मैंने outsourcing बोल दिया था. Sorry for that. And there needs to be taken to achieve the goals. Let's try and understand how suppose 12 students as library blah 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 blah. वो फालतू का example है. अपन दो steps पे आते हैं. सीधी बात है. नो बकवास है. ठीक है. Identification and division of work. The first step in the process of outsourcing, देखो बार बार outsourcing निकल रहा है. Organizing involves identifying and dividing works which that has to be done in accordance with previously determined plans. The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided, um, and the burden of work can be shared among the employees. Departmentalizations. Um, अच्छा ये हाँ ठीक है कोई बात नहीं. Once work has been divided into small and manageable activities, those activities which are similar nature are grouped together such that facilitate specialization. The grouping process is called departmentalization. I know for a fact, but वो नीचे पेज में लिखा है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा अंडरलाइन. ठीक है. ये डिपार्टमेंटलाइजेशन को ग्रीन कर देता हूँ तो कि आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाए बस. ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है. ग्रीन हो गए. एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल तो मैं पढ़ता नहीं हूँ. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. पहले क्या करा, वर्क को ढूंढा, समझ में आया कि भैया काम करना क्या है, फिर उसे बांट दिया, फिर ज्यादा ही बट गया तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग ग्रुप बना दिए लोगों के. अब क्या है, मतलब जॉब्स के ग्रुप बना दे. अब लोगों को ड्यूटी असाइन करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं. It is necessary to define the work of different jobs, positions, and accordingly allocate work to the various employees. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. It is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of the job and the ability of an individual. ये थोड़ी अच्छी लाइन लग रही है. The work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. Best fitted to perform it well. ठीक है. It is necessary to define the job, define accordingly, employ, allocate work to various employees. Department. ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है. ठीक है. सो ये ग्रीन वाला मतलब है हेडिंग, और पिंक वाला है जो आप उसके अंदर लिख सकते हो. तो वो हेडिंग आपको याद करनी है, पिंक वाला सिर्फ रीड करके चले जाओ, और बाकी जो भी कलर है वो बस थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजों के लिए है जो कहीं ना कहीं आ सकती हैं. ठीक है. एमसीक्यू वगैरह में वो थोड़ा पढ़ने के लिए अच्छी होती हैं. जो establishing authority and reporting the system merely allocating work is not enough. Each individual should also know who has to take orders from and whom he is accountable. इतने में भाई को पूरी बात खत्म हो गई. पूरा इसका समझ में आ गया. देखो ये अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है, ऑलमोस्ट याद ही रहने चाहिए. The establishment of such clear to grade hierarchical structure बनाने में मदद कर देता है and helps in coordination among the various departments. coordination में मदद कर देता है. तो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है. Importance of organizing. Performance of the organizing function can pave the way for smooth transition of the enterprise in accordance with the dynamic business environment. The significance of the organizing mainly helps and arises from the fact that it helps in the survival of the growth of an enterprise and equips it to meet various challenges. In order to for any business enterprise to perform take successful blah, blah, the organizing function must be properly performed. The following points are highlighted into the crucial blah blah. ठीक है. तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए देखो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करना पड़ेगा. अपना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए so that you are able to work against the challenges that the environment has to offer. Organizing leads to a systematic allocation of jobs amongst the workforce. This reduces the workload as well as enhances productivity because a specific worker is performing a specific job. यही सब लिखा होगा ना. Which leads to specialization and which increases productivity. वही सब है ना. Gain experiences. एक्सपीरियंस मिल जाता है बंदे को और स्पेशलाइजेशन हो जाता है भैया इसका वजह से. ठीक है. बढ़िया काम है.
क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब जैसे आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट कर दिया, तो इसकी वजह से क्लैरिटी हो जाती है कि भाई ये कौन किसको रिपोर्ट करना है, और किससे किसको बात करनी है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी एम्बिगुइटी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन को हटा देता है, जिससे कि सब भाई काम अपना अच्छे से हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी केओस ना मचे। इट हेल्प्स क्रिएटिंग एन हायरार्किकल ऑर्डर के बारे में पहली बात करते हैं। एनेबल द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि देखो भैया जब सबके काम बता होते हैं ना, तो यहाँ पे फिक्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। भाई तेरी गलती, तूने नहीं करा, ठीक है। अब वो कटा नहीं सकता कि नहीं यार मैंने थोड़ी कोई, जैसे एक कहानी थी, पता नहीं मैं क्यों सुना रहा हूँ। राजा ने अपना एक वो बनवाया था, अपने लिए गेट बनवाया था किसी राजा ने, ठीक है। तो वो मतलब सिटी के सामने, ठीक है। फिर राजा आए उसे इनॉग्रेट करने। फिर राजा उसके नीचे से निकल रहे थे, हाथी हाथी के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, गेट से टकरा के उनका मुकुट नीचे गिर गया, विच इज अ वेरी बिग थिंग इन द ओल्ड टाइम्स, ठीक है। तो राजा ने कहा कि ये इसका जिम्मेदार कौन, मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा, मतलब पागल सा राजा था। तो इसको बनाने वालों को बुलाओ। तो इनको बनाने वाले को बुलाया, उन्होंने कहा साहब को फांसी चढ़ा दो। तो उन्होंने कहा सर हमारी क्या गलती, राजा जी हमारी क्या गलती, वो तो जो इंजीनियर है उसने ही वो डायग्राम गलत बना के चाहिए, तो उस हिसाब से हमने बना दिया था। तो इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर बोला, तो इंजीनियर कह रहा है भाई साहब हमने तो डायग्राम बढ़िया बनाया था, वो इसकी जो ब्रिक वाला है उसने ब्रिक ही छोटी बनाई थी। तो ब्रिक वाले के पास गए, ब्रिक वाले ने कहा ब्रिक तो हमारी तो ब्रिक का फ्रेम अच्छा था, जिसने ब्रिक की मिट्टी विट्टी प्रोवाइड जो भी होता है ब्रिक के अंदर, वो गलत था। तो वो ऐसे करके अंदर अंदर जाते जाते फिर कुछ ऐसा हुआ था कि लास्ट में ये हो गया था कि वो राजा की खुद ही की गलती निकल आई थी। कि राजा जी ने कहा था कि आखिरी में जब कि हमने जो है, हाँ मतलब पहले इंजीनियर ने दिखाया होगा राजा को कि देखो इतना बड़ा बनना है, तो राजा ने कहा इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, थोड़ा छोटा कर लो। तो उसमें राजा की आखिरी में गलती निकली, तो राजा ने खुद ही को सुसाइड कर लिया, तो फांसी लगा दी। मतलब क्योंकि भाई राजा ने बात कही है कि राजा की बात तो माननी पड़ेगी। कि जिसने भी, जिसकी वजह से भी ये हुआ है उसको फांसी पे चढ़ाएंगे, तो वो राजा ही फांसी पे चढ़ गया। पता नहीं मैं बिजनेस स्टडी में ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा था मैं, है ना। कि ऐसे फिक्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना हो ना, तो देखो खुद ही पे फांसी चढ़ जाती है, फिर इतनी बुरी हालत हो गई थी। सो दिस इज अ रियली गुड स्टोरी। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग leads to proper usage of all material, financial and human resources. Um, the proper assignment of jobs avoid overlapping of work, overlapping हट जाती है वर्क की, है ना। तो इससे भी थोड़ी एम्बिग्युइटी कम होती है। एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स होता है अच्छे से। अरे यार मेरी आवाज थोड़ी सी वैसे होते जा रही है, तो ये मेरे को अब समझ में आ रहा है कि देखो ज्यादा बोलने से कैसे आवाज में दिक्कत आ जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पर हो जाता है, कंफ्यूजन हट जाती है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो जाती हैं। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज हो जाता है, रिड्यूस रिसोर्सेज और एफर्ट्स, है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स और एफर्ट्स। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाती हैं किससे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी ऑर्गेनाइजिंग से। अडेप्टेशन टू चेंज, हाँ वही वो डायनामिक एनवायरनमेंट में देखो भैया, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से थोड़ा अडेप्टेशन टू चेंज आसान हो जाता है, वरना अगर बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। The process of organizing allows the enterprise to accommodate changes in the business environment. It allows the suitably modified and the revision of interrelationship amongst the managerial level to pave the mm, way for a smooth transition. वैसे मैं इतनी स्टोरी नहीं सुनाता हूँ, अगर कोई सोच रहा है ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसी वजह से होता होगा, नहीं मैं यूजुअली नहीं सुनाता हूँ, वो याद आ गई बस। It also provides much needed stability to the enterprise as it can then continue to survive and grow in spite of changes. चलो थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रीम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वही लाल पीला हुआ है, पिंक। 14 मिनट्स हो चुके हैं स्ट्रीम के अंदर।
और 11, नहीं नहीं 11 पेजेस नहीं यार, कहाँ चला गया, 5 पेजेस पढ़े हैं। तो वही है, 3 मिनट पे चल रहा है तो 90 मिनट लगेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीड, हाँ ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सब पॉइंट्स अगर आपको राइट करने हैं तो राइट करते रहो, मैं तो पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं राइट नहीं कर पाऊंगा भाई। Organizing provides a clear description of jobs and related duties. This helps to avoid confusion and duplication, clarity in working relationships, enable proper execution. Work management of an enterprise thereby becomes easy, and this brings effectiveness and administration. मेरे को तो पूरी लाइनें अच्छी लग गई, लेकिन इतना कर देते हैं हम। देखो ये पिंक वाली लाइन से पढ़ने के लिए है तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेने का। ग्रीन वाला मेनली याद रहना चाहिए सब। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स। अच्छा, effective delegation allows the manager to reduce the workload by assigning routine jobs for their subordinates. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allows manager to develop new methods and ways of performing tasks. It gives them the time to explore areas for growth and opportunity to innovate, thereby strengthening the company's competitive position. Delegation also develops in the subordinate the ability to deal effectively with challenges and helps them to realize their full potential. तो देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डेलीगेशन आदमी करता है, और डेलीगेशन की वजह से उसको भी थोड़ा सा, जो काम करने वाला होता है उसको भी थोड़ी मदद हो जाती है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है, डेलीगेशन सिर्फ ये नहीं है कि भाई देखो ऑफिस, जो बॉस है उसके पास काम ज्यादा है तो उसने डेलीगेट कर दिया। उससे ये भी है कि भाई बॉस के पास ग्रोथ की चीजें देखने के लिए टाइम मिल जाता है, और जो पर्सनल है, जो आदमी काम कर रहा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइज स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस द वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, है ना। और इस सब से क्या होता है, delegation also develops in the subordinate the ability to effectively challenge, effectively deal effectively with challenges and helps them to realize their full potential, expansion and growth। हाँ आप देखो ये तो वही सेम पॉइंट हो गया, आप इसमें सेम पॉइंट भी रिपीट कर सकते हो कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में आपको टाइम मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है ठीक है। इट अलाउज बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई their product, new geographical territories can be added to the current areas of operation, blah 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 blah. This organizing process which manager brings order to chaos, remove conflict among people over work or responsibility, creates environment and suitable for teamwork वगैरह वगैरह। हाँ तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो ग्रोथ हो जाती है, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है ना। नई नई जॉब पोजीशन बना सकते हो, नए नए आप डिपार्टमेंट बना सकते हो, तो वो आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, ग्रोथ बढ़िया होगी, एक्सपेंशन बढ़िया होगा, मजा आएगा काम करने में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया सा रहेगा। तो वही अब उसी से अब मन आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। पहली लाइन में मजा आ गया, थक जा रहा हूँ बता बोलते बोलते। चलो थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी का ब्रेक, तो 1-2 मिनट का, ठीक है।
An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. The need for an adequate and organizational structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. ये सब ऐसी थोड़ी अच्छी लाइन है, पढ़ लो जल्दी जल्दी. It is only one of those enterprises do not focus on growth can maintain a particular structure for a longer period of time. However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise, as those companies which do not change that will close down or cease. सही बात है भाई. जो कंपनी बदलती नहीं है टाइम के साथ, वो या तो बंद हो जाएंगी या सीज टू ग्रो हो जाएंगी. ये सब अच्छी बात है, पढ़ने लायक बात है बस. As an organization grows, coordination between becomes difficult due to emergence of new functions and increase in structure hierarchies. Thus, for an organization to function smoothly and face economical changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. Peter Drucker emphasizes on the importance of having an appropriate organizational structure. When one says organizational structure is indispensable means, and the wrong structure will seriously impair business at a business performed performance and even destroyed. ठीक है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनाया आपने तो. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन व्हिच द मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड. It specifies the relationship between people, work, and resources. It allows correlation and coordination among human, physical, and financial resources. This enables business enterprise to accomplish desired goals. The organization structure of a firm is shown in an organizational chart. The span of management. देखो ये span of management very important, very important. आया नहीं एग्जाम में तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, जो नाम रखना रख लेना. Span of management to a large extent gives shape to the organizational structure. The span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. अब जैसे ये हो आप सुपीरियर, ठीक है, आपका सर बड़ा है क्योंकि आप सुपीरियर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने लोगों को काम में रख सकते हो, कितने लोगों को संभाल सकते हो, है ना, ये आपके कनेक्शन हैं, ठीक है. यहाँ पे हर जगह लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग बना दिए क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है. अब देखो अगर आप ज्यादा लोग संभाल पाओगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, अगर मान लो एक जो ऑफिसर है वो 5 लोगों को संभाल रहा है और फिर वो एक अपने आप में 5 लोगों को संभाल रहा है, ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है. ऐसे करके एक बड़ा सा ऐसे ट्रायंगल बनता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. अब क्या है, अगर आपने बनाया, सॉरी क्या हो रहा है, ये इरेजर यूज करनी थी मेरे को. अब मान लो अगर आप मान लो 5 को नहीं संभाल पा रहे और सिर्फ आप 2 लोगों को संभालते हो, तो वो 2 लोग 2 लोगों को संभालते होंगे, ये वो 2 लोग 2 लोगों को संभालते होंगे, वो 2 लोग 2 लोगों को संभालते होंगे, ये 2 लोग 2 लोगों को संभालते होंगे, ये 2 लोग 2 लोगों को संभालते होंगे, तो आपका फिर से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा. अब ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी मैंने बनाए थे, इनमें डिफरेंस क्या है? ये तो समोसे जैसा लग रहा है पहली बात. दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि एक तो ये वाला जो है ये थोड़ा सा पतला है और वो वाला थोड़ा सा मोटा है, एंड दिस इज अ रियल डिफरेंस, है ना. तो कहीं पे वाइड स्ट्रक्चर बनते हैं जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा होता है, और कहीं पे स्मॉल मतलब थोड़े नैरो से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा होता है, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज वर्किंग, एक बंदे पे कितना टाइम खर्च करना पड़ता है, many factors that determine the span of management, ठीक है.
This determines the level of management and the structure. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business. An organizational structure provides a framework in which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. Let us try example. तो मैं पढ़ता नहीं हूँ है ना तो अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे आते हैं सीधा the types of organizational structure blah 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 classified as functional and divisional structure. Functional structure है कि भाई कि grouping of jobs in similar nature under the functional structure and organizing these major functions as separate departments है ना and this is what is called by functional structure. तो यहाँ पे देखो मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये जो सिमिलर फंक्शन है एचआरएम को एक जैसा बना दिया मार्केटिंग को एक जगह बना दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक जगह परचेसिंग एक जगह सिमिलर टाइप के लोगों को एक जगह पे डाल दिया ठीक है क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ब्ला 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 फालतू के वो बताएंगे एडवांटेज पे आते हैं सीधी बात है नो वोट पास है द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज मेनी एडवांटेज टू ऑफर इंपॉर्टेंट आर एज फॉलोज ठीक है इंपॉर्टेंट बताएंगे तो 26 मिनट्स हो रहे हैं यार 3 मिनट से भी ऊपर जा रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में स्टोरी सुना लगता हूँ ना मैंने वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम लगा दी बट ठीक है यार समझ में आना चाहिए टाइम जाए तो जाए यार द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज मेनी एडवांटेजेस टू ऑफर important among them are as follows functional हाँ ठीक है functional structure leads to occupational specialization this is the first advantage since emphasis is placed on specific functions this promotes efficiency and utilization of manpower to perform specialized tasks वगैरह वगैरह it promotes control and coordination within a department क्या है control and coordination within a department is the keyword within हो रहा है ठीक है यहाँ पे within को थोड़ा सा कीवर्ड बना देते हैं इसमें येलो का मिक्सचर कर देते हैं येलो से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसमें ब्लू का मिक्सचर कर देते हैं ब्लू से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो इसमें हम क्या करेंगे पिंक का मिक्सचर कर देंगे चलो जैसे बहुत फर्क पड़ गया because similarly in the task blah 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 it helps in increasing managerial and operational efficiency मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाता है ठीक है और इसको आप नया एक और पॉइंट बना के लिख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ा देता है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है उससे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विल रिजल्ट which result in economics of scale मिनिमम डुप्लीकेशन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आसान हो जाती है इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी जब आप स्केल पे प्रोड्यूस करते हो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पर वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से आप लो कॉस्ट पे सामान बना के या तो हायर मतलब आपका कॉस्ट और प्राइस का ऑफ द प्रोडक्ट आप कॉम्पिटिटिव बना सकते हो डाउन कर सकते हो to reach larger number of audience so that your volume increases even more so this is called economies of scale it makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skills तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर हो जाता है क्योंकि एक ही चीज सिखानी है एम्प्लॉय को ज्यादा फालतू की बातें करनी नहीं है अपन को है ना इट ensures that different functions give due attention to different functions मिलता है यहाँ पे ऐसे कोई भी फंक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं सब फंक्शन अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एडवांटेज बता रहा है ये तो अब डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज हर जगह भाई फंक्शन की बात चल रही है एंटरप्राइज को तो भूल ही गए लोग है ना तो ओवरऑल एंटरप्राइज पे थोड़ा सा कम का दिमाग लगता है फंक्शनल हेड्स such practices may lead to functional empires wherein the importance of a particular function may be overemphasized ठीक है importance फंक्शनल एम्पायर्स ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आएगा तो नहीं एग्जाम में बट पढ़ने में मजा आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन में भी ओवर एम्फसाइज ठीक है पर्सनल डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल interest can also hinder interaction between two or more departments
It may lead to problems of coordination as information to be exchanged across functionally different departments, है ना? तो कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि फंक्शनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी वर्बैटिम है, उनकी अपनी नॉलेज है। अब फाइनेंस वाले को मार्केटिंग की बातें समझ नहीं आती, मार्केटिंग वाले को एचआर की बातें समझ में आती, एचआर वाले को आर&डी की बातें तो किसी को समझ में नहीं आती होंगी कि भाई क्यों वेस्ट कर रहे हो आर&डी में पैसा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट करो, माल बेचो बढ़िया से। लेकिन आर&डी में पैसा खर्च करती हैं कंपनियां, क्योंकि आर&डी से कुछ ऐसी इनोवेशन हो जाए जिससे आप बिल्कुल बूस्ट कर जाओ, लेकिन वो पक्का नहीं होता है। तो आर&डी इज अ रिस्की बिजनेस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन वो मार्केटिंग और सेल्स वाले बंदे को समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा यार पैसे दो, मार्केटिंग करें, बढ़िया से बिजनेस बनाए, आर&डी में पैसा बर्बाद कर रहे हो, है ना? सो दिस इज है, कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है। वो कहते हैं हमें पैसा दो, वहाँ हमें पैसा दो, यहाँ पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यही है, सब पैसे के भूखे हैं, हम हमारे डिपार्टमेंट को पैसा दो, हम आपको बढ़िया बिजनेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन, कॉस्ट डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन। हाँ, तो सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाओ, और प्रोडक्शन वाला कहेगा हम नहीं बना पा रहे यार, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, है ना? लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी इन पीपल, क्योंकि देखो वही है, नैरो पर्सपेक्टिव बन जाता है। अब जो फाइनेंस वाले हैं वो सब फाइनेंस वालों के साथ रह रहे हैं, वो फुल अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई दुनिया भर में सारे लोगों को सीओजीएस और ये जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, टैम एम, है ना, ईवी टू एबिटा, और जितने भी होते हैं, है ना, पैट, ग्रॉस मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो भी है सब पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। तो वो उन्हें लगता है अरे यार क्या गधा आदमी है ना, तुम्हें तो कुछ आती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्या काम कर रहा हूँ, बकवास है तुम तो, ऐसे होने लगता है। तो suitability, it is the most suitable when the size of organization is large, has a diversified activities and operation require a large degree of specialization। अगर स्पेशलाइजेशन जरूरी है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा बना रही है, तो उसमें काम हो जाता है, ठीक है? डिविजनल स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली, बट आगे सुनो। हम्म, थोड़ा सा ब्रेक, आधे आधे मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। Many large organizations with diversified activities have recognized themselves away from the simpler basic functional structure towards a divisional structure which is more suited to their activities. This is particularly true to those enterprises which have more than one category of products to offer. ठीक है? This is because although every organization performs a set of homogeneous functions, as it diversifies into varied product categories, there is a need for more evolved and structural design is felt to cope with emerging complexity. In a divisional structure, the organization structure comprises of separate business units or divisions. Each unit has a divisional manager responsible for performance who has authority over the unit. Generally, manpower is grouped on the basis of different products manufactured. Each division is multifunctional because within each division function, like production, marketing, finance, purchase, etc., are performed together to achieve a common goal. Each division is self-contained as it develops expertise in all functions related to a product line. In other words, with each division, the functional structure tends to be adopted. However, functions may vary across the divisions in accordance with the particular line. Further, each division has a profit center where the divisional head is responsible for profit or loss, blah 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 blah। एडवांटेज पढ़ते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है, वेरिड स्किल बनती है ना,
तो डिविजनल हेड के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये डिविजनल कम फंक्शनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एंड बना दिया, पहले कम लिखा होता था, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे सबसे बड़ा आदमी है, इसके अंदर ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट के अपने डिपार्टमेंटल हेड है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर सेम फंक्शंस हो रहे हैं, है ना। HR, मार्केटिंग, R&D, परचेजिंग और सेल्स for higher position. This is because he gains experience and all blah blah. ठीक है। डिविजनल हेड और अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तगड़ी हो जाती है कि भाई तुमने प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया, अब बताओ, तुमने बताओ प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया। तो सीधा मुंह पे प्रोडक्ट वाले डिविजनल मैनेजर के मुंह पे आ सकते हैं कि भाई तूने प्रॉफिट नहीं बनाया, अब तू भाग मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, मैं दूसरे को बना रहा डिविजनल हेड, ठीक है। Promotes flexibility and initiative before each functions as an autonomous unit, which leads to faster decision making, है ना। Facilitates expansion and growth as new divisions can be added without interrupting the existing ones. ये बहुत अच्छी बात है कि भाई देखो, अब तो मैं गारमेंट वारमेंट बनाते हो, तुम्हें चश्मे और बनाना है, तुम नया चश्मे का डिपार्टमेंट बना दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है तुम्हें, बना लो डिपार्टमेंट, है ना। अब देखो बैटरी कम हो गई है, तो मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा दूं, फिर बात करते हैं। Okay, the divisional structure has certain disadvantages. Conflict may arise among different division. Conflict हो जाते हैं भाई साहब different divisions में with reference to allocation of funds. um, तो इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे एक डिवीजन बढ़िया कर रहा है तो उसको पैसे पैसे मिल रहे हैं, दूसरे को मिल नहीं रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि एक डिवीजन प्रॉफिट कमा रहा है और उसका प्रॉफिट किसी और को दिया जा रहा है, तो वो क्यों ही बना रहा है फिर प्रॉफिट, उसे आएगी गुस्सा, मैं नहीं बना रहा प्रॉफिट, जब मैं प्रॉफिट बना के दूसरे को ही देना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिबेंचर ले लेता हूँ, खूब सारा लोन ले लेता हूँ, और उसे इंटरेस्ट के चक्कर में प्रॉफिट ही मिलेगा, बढ़िया, इंटरेस्ट देने में से पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग तरीके निकालते हैं यार, बहुत बहुत टैक्टिक्स होते हैं। इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, हाँ इंक्रीज इन कॉस्ट। और क्योंकि क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हो रहा है, हर डिवीजन के अंदर सेम चीजें यूज हो रही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ, ईच डिवीजन सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस increase expenditure. It provides manager with the authority to supervise all activities related to particular division in course of time. Such a manager may gain power and a better assert his independence. ये कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो तुम ऐसा करो, आप जैसे गार्नियर सोप्स बना रहे हो, ऐसे ही मजाक में वगैरह हूँ, गार्नियर सोप्स बना रहे हो, तो अब जो गार्नियर सोप्स का हमें ब्रांड अलग दे दो, हम ओवाफोर बनाएंगे, नाम चेंज कर दिया, और वो काम से करेंगे, और तुम अपना बिजनेस संभालो, हम अलग बिजनेस है, ठीक है। तो divisional structure is suitable for those business enterprise where a large variety of products are manufactured using different productive resources, ठीक है, और इनको ग्रोथ व्रोथ में आसानी हो जाती है, तो बढ़िया सा काम हो जाता है। और अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म, हाँ फॉर्मेशन पे देखें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। स्पेशलाइजेशन में देखें, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें तो यहाँ पे डिफिकल्ट होती है, वहाँ पे हार्ड होती है, यहाँ यहाँ पे आसान होती है डिविजनल वाले में। मैनेजरियल डेवलपमेंट में देखो तो यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक फंक्शन मतलब एक मैनेजर एक ही फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे आसान हो जाता है क्योंकि एक आदमी प्रोडक्ट का सब कुछ देता है, तो वो उसे थोड़ा सा इसकी स्किल ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। कॉस्ट इसमें क्या है, इसमें कम है, इसमें ये डुप्लीकेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इसमें थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि भाई वही बात है कि लोग मानते नहीं है एक दूसरे की बात, और स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मल्टीप्रोडक्ट कंपनी के लिए बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे बढ़िया से अपना संभालो यार, प्रोडक्ट संभालेंगे अलग अलग बैठ के। ये इनने बड़ी सी वो दे रखी है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। 13 पेज हो गए यार, 39 मिनट हुए कि नहीं।
एक्चुअली 40 मिनट हो गए हैं, अपन 3 मिनट से भी लंबा जा रहे हैं पता, which is bad. Formal and informal organization. In all organizations, employer guided by rules and procedures to enable smooth functioning of an enterprise. Description and rules and procedures related to work process have been laid down. This is done through the formal organization. Formal organization refers to the organizational structure is designed by the management to accomplish a particular task. It specifies clearly boundaries and authority responsibility. And भी कुछ और होगा तो वो छोड़ो, ठीक है। तो ये थोड़ा से ऐसे बना देते हैं। And there is systematic coordination, blah blah blah. The structure in a formal organization functions or divisional. The formal organization can be better understood by the features which are the following. अब features बताएं भैया. It specifies the relationship between among various job positions and the nature their interrelationship. This clarifies who is report to whom. तो specifies the relationship हो जाता है, ठीक है। Clarify हो जाता है कि who is report to whom. Means to achieve objective होता है, ये वो फालतू की बातें नहीं करते। मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ठीक है। इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर अचीवमेंट। Efforts of various departments are coordinated, interlinked, and integrated through the formal organization. Efforts of various organizations coordinated, interlinked, and integrated. Deliberately designed by the management to facilitate the smooth functioning of the organization. It places more emphasis on the work to be performed than interpersonal relationship of employees. एडवांटेजेस की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिल मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्लियरली डिफाइंड है। एम्बिगुइटी बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि हर आदमी का रोल बिल्कुल डिफाइंड होता है। थोड़ा सा टाइम जा रहा है इसमें। ड्यूटीज स्पेसिफाई होती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता नहीं है, तो बढ़िया सा काम हो जाता है अपना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड, एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड फुल मेंटेन चलती है अपनी, स्केलर चेन बढ़िया से चल रही होती है। It leads to effective accomplishment of goals by providing a framework for the operations to be performed and ensuring each employee knows the role he has to play. It provides stability in the organization. Stability provide हो जाती है भैया। Limitations पे आते हैं। The formal communication may lead to procedural delays. Procedural delays हो जाते हैं क्योंकि established chain of command होती है। Formal organization is a system of well-defined job, each bearing a definite measure of authority, responsibility, and accountability. Lewis Allen. Formal organization is a system of constantly coordinated activities of two or more persons towards a common objective. Sister Barnard. देखो बहुत सारा चैप्टर बाकी है लेकिन लगे रहना है, ठीक है, थकना नहीं है, थकना मना है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस may not provide adequate recognition to creative talent, ठीक है। It is difficult to understand all human relationships in an enterprise. Difficult to understand human relationships in an enterprise as it places more emphasis on work, ठीक है। Hence the formal organization does not provide complete picture. Complete picture नहीं देता भाई, complete picture नहीं देता how an organization works. तो अब बात आई कंप्लीट पिक्चर फिर कौन देता है, तो कंप्लीट पिक्चर दोनों मिला के देते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू बी कंप्लीट। Interaction among people at work gives rise to a network of social responsibility, social relationships among employees, called informal organization. Informal organization emerges from within the formal organization when people interact beyond their defined roles.
When people have frequent contacts, they cannot be forced to rigid formal structure. Rather, based on their interaction and friendship, they tend to form groups which show conformity in terms of interest. Example of such groups may form a common interest, maybe those who take blah 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 blah. And informal organization has no written rules, is fluid scope, and does not have fixed lines of communication. ये सब थोड़े थोड़े फीचर बताए जा रहे हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फीचर बता देंगे आप, ठीक है. विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये तो अभी मैंने देख लिया. स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व होता है फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स से बनता है, ठीक है, स्टैंड ऑफ बिहेवियर, ना कि ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स से. नींद आ रही है बता. इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी आधा चैप्टर और बाकी है. At emergence spontaneously, not deliberately created by management. It has no definite structure or form because it is a complex network of social relationships among members. No definite structure or form. An informal organization is an aggregate of interpersonal relationships without any conscious purpose, but which may contribute to joint results. Just a Bernard. Um, Informal organization is a network of personal and social relationships not established or required by the formal organization, but arising spontaneously as people associate with one another. Keith Davis. Advantages. Prescribed lines of communication are not followed. Thus, informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback. It helps to fulfill social needs of the members, and allows them to find like-minded people. ये इनका job satisfaction enhance हो जाता है इससे. It contributes towards fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies. क्या है? अच्छा. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दिक्कत होती है ना, तो ये सॉल्व कर देता है उसे. ओह शिट. थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक. चलो, डिसएडवांटेजेस पे आते हैं. र्यूमर्स हो जाते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है.
against the interest of formal organization. Management will changes in the posting. अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मान लो तुमने व्हाट्सएप चैट ग्रुप बना रखा है, वहां पे लोगों से अपोज करना है, तो मैनेजमेंट को दिक्कत आएगी अब वो इम्प्लीमेंट करने में। पहले क्या होता था यार, बोल दिया मैनेजमेंट ने, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम चाहे जितनी गाली दो मैनेजमेंट को, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, है ना। अब मैनेजमेंट भी ग्रुप में है तो उसे लगता कि अरे यार कैसे करें, अब तो लोग कह रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना। पहले तो वो कह सकते थे अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कर दिया, है ना। मीनिंग में क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। इन्फॉर्मल में क्या है, नेटवर्क और सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। ओरिजिन क्या है, अराइजेज आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। ये स्पॉन्टेनियसली सोशल इंटरेक्शन की वजह से हो जाता है। अथॉरिटी इसमें क्या है, वर्च्यू ऑफ पोजीशन से। इसमें क्या है, पर्सनल क्वालिटी से। बिहेवियर क्या है, डायरेक्टेड बाय रूल्स, यहाँ पे नो सेट बिहेवियर और ग्रुप नॉर्म से बनता है बिहेवियर। नेचर क्या है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन। यहाँ पे कोई प्लान नहीं होता, कुछ भी कैसे भी कहाँ भी हो जाता है। लीडर होते हैं, मैनेजर यहाँ पे होता है जो बढ़िया से ग्रुप ने चूज करे हैं, ठीक है। हाँ, प्रेशराइज मेंबर टू ग्रुप कंफर्म ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बिजनेस स्टडी की मैम है, उन्होंने एग्जांपल दिया था कि देखो वो मैनेजमेंट मतलब जो सोसाइटी के उनके मतलब वो सोसाइटी में रहती होंगी, तो सोसाइटी में उनके पार्टी वार्टी में जाती होंगी। तो अब वो कहने लगी कि किटी पार्टी भी ज्वाइन करो। तो किटी पार्टी ज्वाइन करने में खर्चा बहुत होता है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं करना। लेकिन अब वो वो हो जाता है कि प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। कि आप अब इनफॉर्मल गैदरिंग में आ रही हो, तो आप अकेले नहीं जाओगे किटी पार्टी में, बाकी सब लोग आ रहे हैं, तो वही हो जाता है कि ग्रुप एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको कंफर्म करनी पड़ती हैं, है ना। तो दिक्कत आती है। Informal organization can be altogether eliminated. Thus, it would also be in the best interest of the organization if the existence of such groups is recognized, all that their members play are identified. The knowledge of such groups can be used to gather support and consequently lead improved organizational performance. Such groups can also provide useful communication channels instead of confronting them. The manager is skillfully take advantage of both the formal and informal structure to so that the work continues smoothly. तो देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप एलिमिनेट तो कर नहीं सकते हो, तो अब आपको उसको साथ काम करना सीखना पड़ेगा और उसको अपने बेस्ट एडवांटेज में यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसके एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं। आपको ये ट्राई करना है कि एडवांटेज मोस्ट से मोस्ट हो, डिसएडवांटेज कम से कम हो, ठीक है। A manager, no matter how capable he is not cannot manage to do every task on his own, ठीक है। The volume of work makes it impractical for him to handle all the work by himself. तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है, डेलीगेशन करता है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। इफ ही डिजायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड सो दैट ऑल डेलीगेशन डेलीगेट अथॉरिटी करना पड़ता है। डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इट इज अ result to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priority activities. It also satisfies the subordinates' needs for recognition and provides them with opportunities to develop and exercise initiatives. ठीक है। ये वाला ब्लू है, ये वाला पिंक है। And delegation helps a manager to extend his areas of operation without it his activities blah blah blah. However, delegation does not mean abdication. Abdication नहीं करना है कि आपने अपना काम किसी और को दे दिया, बस बात ही खत्म हो गई। Abdication आप उस काम से मुक्त हो गए, नहीं भाई, you are always accountable. The manager still be accountable for the performance of his the assigned tasks, ठीक है। Moreover, the authority granted to sorry for that can be taken back, redelegated to another person, ठीक है। अगर अच्छे से काम नहीं करा तो वो किसी और को दे देगा, तो अभी भी अकाउंटेबिलिटी उसी के पास है। उसने कहा हाँ हमारे लिए ये काम कर दो, बस मैनेजर ने इतना कहा। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम so that he performs that part which only he because of his unique organizational placement can perform effectively, so that he can get others to help with what remains. Lewis Channel, Alan. Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate with prescribed limits. Theo Heyman, 17 पेजेस 18 पेजेस पे आए हैं। 54 मिनट से तो कम ही होना चाहिए, लेकिन 55 मिनट्स हो गए यार, अब तो पीछे जा रहे हैं हम लोग।
Elements of delegation. According to Lewis and delegation in the instruments of responsibility, authority to another, and creation of accountability for performance. A detailed तो लुइस एनल एलन एलन क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ यार, गलती से बोला, ठीक है। लुइस एलन की वजह से हम पढ़ रहे हैं authority, responsibility और accountability. Authority, responsibility, the right of an individual to command his subordinate to take action within the scope of his command. ये authority होती है कि आप अपने subordinate को command कर पाओ, ठीक है, कि भाई देखो ये काम करना है तुम्हें और कर दो, अब फालतू की बात नहीं, ठीक है। In the formal organization, authority, responsibility, blah blah blah, as virtue of an individual position and the extent of authority is highest at the top level management. जितना ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे जाओगे उतनी आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, और यहाँ पे खूब सारे वर्कर होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना, अकाउंटेबिलिटी में ख्याल से भी बढ़ती है, तो सब बढ़ते ही है यार। अकाउंटेबिलिटी का पक्का नहीं है, बाकी देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In the formal organization, authority originated by an individual position and extent of authority at the highest of blah 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 blah. That is, a superior has authority over subordinate. Authority relationships helps maintain order in the organization by giving manager right to exact obedience and give direction to the workforce under them. Authority determines the superior subordinate relationship, wherein the superior communicates his decision to the blah blah blah, expecting compliance from him. ठीक है। As per the guidelines of this, the extent to which a superior exact compliance also depends on the personality of the superior. It must be noted that the authority is restricted by the laws and allows the rules which limit its scope. However, as management goes higher up in the hierarchy, the scope of authority increases. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो बढ़ते जाता है responsibility. Responsibility is the obligation of subordinate to properly perform the assigned tasks and duty. It arises from superior-subordinate relationship because subordinate is bound to perform the tasks assigned by a superior. The responsibility flows upwards. A subordinate will always be responsible to his superior. ठीक है। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स कि मेरा सबॉर्डिनेट के ऊपर मेरी अथॉरिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स कि मेरे बॉस के लिए मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। मतलब समझ जाओ बस मैं और कंफ्यूज कर दूंगा वरना, ठीक है। An important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility is when an employee is given responsibility for a job, he must be given the degree of authority necessary to carry it out. Thus, effective delegation, the authority must be commensurate with the assigned responsibility. यही चीज हमारे स्कूल में थोड़ा कम होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे देते हैं, अथॉरिटी बिल्कुल नहीं देता है ना। अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी commensurate with the assigned responsibility. If authority is granted more than responsibility, वो misuse of authority हो जाएगा. If responsibility is granted more than authority, तो वो person ineffective हो जाता है, जैसे कि मैं बन गया था, because I did not have authority that much, right? Accountability. Delegation of authority undoubtedly powers an employee to act for a superior, but the superior would still be accountable for the outcome. क्या है? Delegation of authority undoubtedly empowers क्या बोल रहा है? Delegation of authority undoubtedly empowers an employee to act for a superior, but the superior will still be accountable for the outcome. ठीक है, अकाउंटेबल अभी भी सुपीरियर ही रहेगा, चाहे आपने डेलीगेट कर दिया, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हो, अकाउंटेबिलिटी ऐसे आसानी से आप दे नहीं सकते, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी implies being answerable to the final outcome.
Once authority has been delegated and responsibility accepted, mm, one cannot deny accountability. It cannot be delegated and flows upwards. That is, a subordinate will always be accountable for to a superior for satisfactory performance of work. It indicates that the manager has to ensure proper discharge of duty by his subordinates. ठीक है, तो मैनेजर, जैसे यहाँ पे आपका मैनेजर है, मैनेजर ने अपना काम डेलीगेट करा, एक वो बंदे को डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तो वो उसको उसने अथॉरिटी दे दी कि हाँ इन लोगों से काम कराना है ना तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी मोड़ी अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी दे दी, तो इन लोगों को अंडर में डाल दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि काम पूरा करके दे अब अपने साहब को, लेकिन बात यह है कि अकाउंटेबल अभी भी ये जो काम के लिए है वो यही बंदा अकाउंटेबल है। क्यों है अकाउंटेबल? क्योंकि इसके ऊपर जो बॉस है ना, इसके ऊपर जो बॉस बैठा है वो ठहराएगा कि ये भाई तुम अकाउंटेबल हो, तुमने काम क्यों नहीं करा। सो क्या है, मैनेजर हैज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय सबऑर्डिनेट्स। समझ रहे हो बात को? मैनेजर हैज टू एंश्योर द प्रॉपर discharge of duties by his subordinates. It is generally enforced through a regular feedback to the extent of work accomplished. हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। In conclusion, it can be stated that authority is delegated, responsibility is assumed, accountability is imposed, responsibility is derived from authority. हाँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। अब देखो इसको समझना थोड़ा सा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है ना। तो अथॉरिटी सबका बाप है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्स फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आते हैं अपन लोग क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये सब छोड़ो, हाईलाइटर पकड़ते हैं, है ना। Delegation ensures that subordinate perform tasks on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more of time to concentrate on important. Effective delegation leads to अलग अलग चीजें बताई हैं। तो पहले थोड़ा सा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का ओवरव्यू कर लेते हैं अपन लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना 1 घंटा तो निपट ही चुका है, कितना बचा है? 10 पेज और बचे हैं, तो 10 पेज 30 मिनट और लेगा, तो 1 घंटे 40 मिनट का चैप्टर निकलेगा ही। थोड़ा मेरा तो नींद सी आ रही है, इसीलिए मैं बार बार ब्रेक ले रहा हूँ। थोड़ा सा पानी पीने का ब्रेक फिर से ले लेते हैं।
Hello, shout out to Pranjal Kasera. He came to the chat, but of course, I don't have time to read the chat when I'm like studying the chapter, right? Overview of the elements of delegation. Allegation बोल रहा था delegation को. Meaning of authority, right to command, responsibility, obligation to perform an assigned task. Uh, Sorry for that. Answerability to the outcome of the task, assigned task is accountability. Delegation can be delegated. Responsibility cannot be entirely delegated. Accountability cannot be delegated at all. Origin arise from formal position, arise from delegated authority, arises from responsibility. ठीक है, तो ये आता है फॉर्मल पोजीशन से, और ये आता है फिर से ड्राइंग करते हैं थोड़ी. फॉर्मल पोजीशन से अथॉरिटी आता है, अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आता है. ठीक है, तो बस यही है फिर. Flows downward from superior to subordinate, flows upward from subordinate to superior, flows upward from subordinate to superior. बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को तो गोले बनाने में. इफेक्टिव मैनेजमेंट. Effective management, employee development, facilitation of growth, basis of management hierarchy, और क्या है, motivation of employees, better coordination. तो ये क्या है, importance of delegation है. importance of delegation है. चलो अब इन importance of delegation को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. पिंक क्यों नहीं हो रहा, पिंक हो गया. By empowering the employees, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate, uh, more time to concentrate on important matters, freedom from doing report work, excellent opportunities in new areas. New areas में भैया help हो जाती है. As a result of delegation, employees get more opportunities. Employee को more opportunity मिल जाती है to talent utilize करने के लिए, and इसमें जब latent abilities मिल जाती हैं उन्हें, डेवलप हो जाते हैं, स्किल्स मिल जाती हैं, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं, assume their responsibility which will improve their career prospect हो जाते हैं अच्छे बढ़िया, बेटर लीडर बनाता है, डिसीजन मेकर बनाता है, डिसीजन हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर, ब्ला 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 ब्ला. मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि वो सुपीरियर ट्रस्ट करता है उस पे, तो उसको एक थोड़ा सा इन्वॉल्व ट्रस्ट है ना, कमिटमेंट है, तो वो थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है कि भैया हाँ हमारा सुपीरियर हम पे विश्वास करता है ना. ही फील्स एनकरेज एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर. वो परफॉर्मेंस बढ़ाता है अपनी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ती है ना. सॉरी फॉर दैट नॉइस, लोग तो हल्ला करते रहते हैं बस. Delegation helps in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading position and new ventures. ठीक है, तो पहले से रेडी वर्कफोर्स मिल जाती है अपन को न्यू वेंचर्स बनाने के लिए, ताकि वो लोग आए और वो क्या कहते हैं, experienced employees play significant roles in the launch of new projects, replicating the work ethos, जो एथिक्स उन्हें समझ में आए यहाँ पे एनवायरनमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में. Basis of management hierarchy. Delegation of authority establishes superior subordinate relationships, which are the basis of hierarchy of management. तो hierarchy of management बन जाती है. ठीक है, flow of authority determines who is report to whom. तो पूरी hierarchy of management is based on the delegation basically. Basis of management hierarchy है delegation. Better coordination हो जाता है, क्योंकि authority, responsibility, accountability have to define power, duty and answerability related to various positions of an organization.
This helps in avoid overlapping of duties. क्या हो रहा है ये? अरे, ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज अवॉइड हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाता है, मतलब अवॉइड हो जाता है, क्लियर पिक्चर मिल जाती है, तो सब भाई बढ़िया बढ़िया काम हो जाते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन पे आते हैं। देखें कोई लाइव चैट पे आ गया हो तो। वो अभी एक बंदा आया था, वो तो चला गया। He thought that there's no one here, and kind of yeah, there's no one there. Yep, no one there. In many organizations, the management plays an active role in taking decisions, while there are other organizations in which the power lower level is management. Those organizations where decision-making authority lies with the top management are called centralized organizations, whereas those organizations in which authority is shared with lower levels are called decentralized organization. Decentralization explains the manner in which decision making responsibilities are divided among hierarchical levels. Put simply, a decentralization refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization. Decision making authority is shared with lower levels and is consequently placed nearest to the point of action. Nearest to the points of action. And decision making authority is pushed down the chain of command. ये सब keywords हैं decentralization के. But decisions taken by the lower levels are numerous and important as organization can be regarded as greatly centralized. अगर important decision छोटे लोग ले रहे हैं, तो that will be called a greatly decentralized organization. ठीक है? Uh, Centralization and decentralization are related terms as seen from the existing status of various business enterprises. An organization is centralized when decision-making authority is retained by higher management lives, whereas it is decentralized when such authority is delegated. Complete centralization would imply concentration of all decision-making function is at the apex of the management hierarchy. Such a scenario would obviate the need for management hierarchy. है ना? जब सारे डिसीजन बड़े लोगों को ही लेना है, टॉप मैनेजमेंट को लेना है, तो मैनेजमेंट हायरार्की क्यों बनाई है? तुम एक ही मैनेजमेंट रखो, पूरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उसी के अंदर डाल दो। बट यही बात आती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है ना। अगर एक ही टॉप मैनेजर होगा, वही सारे डिसीजन लेगा, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी, तो वहां पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब भी नहीं है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोगों को उसी के अंदर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि मोस्टली नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। दैट इज वाई अ स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रक्चर के लिए डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ता है ओवर ऑल द levels of organization, which itself is called decentralization. Therefore, decentralization is also important, centralization is also important. It should be balanced. वरना अगर आप पूरा ही डिसेंट्रलाइज कर दोगे ना, तो पूरा एम्प्लॉय ही सब डिसीजन लेने लग जाएंगे, तो सब अपने खुशी के लिए डिसीजन लेंगे कि चलो सैलरी बढ़ा देते हैं, पूरा सैलरी बढ़ा देते हैं, मार्केट को जान दो लॉस में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को जान दो लॉस में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करना ही इस टॉपिक में सिखाया जा रहा है। On the other hand, complete decentralization would imply the delegation of all decision making function to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial position. अब वो कहेंगे तो हम लोग क्यों भाई, हम लोग नेता क्यों हैं, हम लोग सीईओ क्यों बैठे हैं, जब सारे काम तुम ही करने हैं, तो सारे डिसीजन एम्प्लॉय ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों बैठे हैं, है ना? An organization can never be completely centralized or decentralized as it grows in the complexity. uh, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग ज्यादा मतलब इट इज अ टेंडेंसी कि देखो जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जरूरी हो जाती है, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लिमिटेड होता है और फिर एक आदमी ज्यादा ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाता है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। ऑल्सो अगर एक ही आदमी सारे डिसीजन लेने लग जाएगा ना, तो डिलेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अपन डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस को झेल नहीं पाएंगे, है ना? इसीलिए इट शुड बी केप्ट क्लोज टू द लाइक जहाँ पे जरूरत है उसी के आसपास वाले लोग अगर डिसीजन ले लें,
स्केलर चेन में, तो आसान हो जाएगा ताकि काम जल्दी अपना हो जाए, ठीक है। Hence, there is a need for a balance between these coexisting forces. Thus, it can be said that every organized will be centralized as by characterized by centralization and decentralization both. ठीक है। अब इम्पोर्टेंस पे आते हैं। देखो इम्पोर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजिंग की और डेलीगेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की, तीनों की और वो सेम ही है, ठीक है। तो वो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो पढ़ना ही है। आप देखो क्या कर सकते हैं। Decentralization much more than mere transfer of authority from the lower level to the lower level of management hierarchy. It is a philosophy that implies selective dispersal of authority because it propagates the belief that people are competent, capable and responsible. It is a philosophy. ये delegation से बहुत बड़ी चीज है। Delegation तो बस एक जगह पे थोड़ा सा हो जाता है। It is a narrow concept. Delegation is a narrow concept. Decentralization wider concept. They can assume the responsibility, blah blah blah. This philosophy recognizes the decision makers' need for autonomy. The management, however, needs to be carefully selected those decisions which will be pushed down the lower level and those will that will be retained at higher level. It is very hard to determine which decision is very important and imperative for the organization. Therefore, that will be concentrated to the centralized level, and which decision should not be concentrated to the centralized level and should be delegated or pushed down the to the lower levels of the organization. Decentralization is a fundamental step, and its importance can be understood from the following points. Develops initiative among subordinates. Okay, so decentralization develops initiative among subordinates. Decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates. This is because when lower managers are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment. It is also keeps them state aware and they are constantly challenged to develop solutions to these various problems encountered. Decentralization policy helps to identify the executives who have the necessary potential to become dynamic leaders. तो इससे पता चल जाता है कि भैया अपना नए लीडर कौन है, क्योंकि जब आप सबको डेलीगेट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये आदमी बढ़िया से मैनेजमेंट कर रहा है, तो चलो इसे ऊपर प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाता है। डेवलपमेंट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब देखो ये सेम पॉइंट है लेकिन वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे को आई थिंक थोड़ा सा और टाइम चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। मेरे को ये सारे पॉइंट्स कंसोलिडेट करके अपने लिए बेस्ट छोटे से नोट्स बनाना है, तो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए पड़ेगा 1 दिन का, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं पा रहा है। तो अभी देखते हैं, जैसा भी हो पाएगा करेंगे, ठीक है। फॉर्मल ट्रेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्विपमेंट सबऑर्डिनेट विद स्किल्स टू हेल्प देम राइज इन the organization, but equally important is the experience gained by the handling assignments independently. Decentralization gives them a chance to prove their abilities and creates a reservoir of qualified and blah 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 considered to fill up the more challenging positions to promotions, ठीक है। तो ऐसे रिजर्वायर बना देता है लोगों के, जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि वो बड़ी पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। ये क्या हो गया? तो मैन पावर को वो देता है इच्छा, अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम्हें हमने डेलीगेशन की पावर दी है, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें हम और प्रमोट कर देंगे, है ना। तो उससे एक रिजर्वायर बन जाता है कि फ्यूचर डिसीजन मेकर्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है ना। डायनामिक एनवायरनमेंट में बढ़िया से बिजनेस काम कर पाता है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ हो जाती है। तो क्या है, the management hierarchy can be looked upon as a chain of communication in centralized organization because every decision is taken by the management. The flow of information is slow as it has to traverse many levels. ठीक है, response also takes time. This reduces the speed of decision making and makes it difficult for an to adapt to dynamic operating conditions. In a decentralized organization, however, since decisions are taken at the points of nearest points of action, there is no requirement of approval from many levels. The process is much faster. There are also less chances of information getting distorted because it doesn't have to go through many levels. मेरा तो मन कर रहा है पूरे लाइन को पिंग कर दूं मैं, क्योंकि यही सेम चीज मैंने अभी अभी आपको समझाई है ना। तो ये पूरा ही मतलब ये बेसिक है, मतलब ये कॉमन सेंस है। ये ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको कि इतना बड़ा वो अंडरलाइन कर दिया मैंने। अंडरलाइन वो बड़ा लग रहा है, लेकिन वो सिंपल से बता रहा है कि अगर
ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, तो क्या दिक्कत होगी, ज्यादा से ज्यादा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में धीरे धीरे जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगा, डिस्टॉर्शन हो सकता है मैसेज का, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, इसकी वजह से डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो उसमें क्या बेस्ट काम हो जाएगा कि बिल्कुल से नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, जहाँ पे एक्शन लेना है वहां से पास में डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज कम होगा, तो बिजनेस डायनामिक एनवायरनमेंट बढ़िया से काम करेगा। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट क्या भाई छोटे छोटे डिसीजन लेते रहेगी ना, तो बस हो गया काम ऑर्गेनाइजेशन का। सो इसीलिए क्या होता है, डायरेक्ट सुपरविजन की कमी हो जाती है, मतलब जरूरत नहीं पड़ती है। और जो ये बड़े बड़े लोग हैं जो कि सीईओ वगैरह हैं, तो इनको क्या है, वो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है ना, ये सब काम कर सकते हैं। वो ऑपरेशनल डिसीजन में उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो बड़े बड़े काम देखेंगे कि भाई देखो ग्रोथ कैसे करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, और वहीं से देखो ग्रोथ कब आ गया, ठीक है, तो ग्रोथ कैसे करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रोल कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वगैरह 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 वगैरह। Decentralization towards greater autonomy on the lower levels of management as well as departmental heads. This allows them to function in a manner best suited to the department and fosters a sense of competition among the departments. Uh, Consequently, with each department doing its best and better out of the other, the productivity levels increase. Productivity levels increase. The organization is able to generate more returns, which can be used for the expansion purpose. तो देखो क्या होता है, जब इतने सारे लोगों को डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हम लोग को दे देते हैं अपॉर्चुनिटीज टू टेक डिसीजंस, उनको अथॉरिटी मिल जाती है, और उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको हम प्रमोट भी करेंगे। तो अब ये बात है कि अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा करना क्या होता है, अच्छा करना होता है कंपेरेटिव रिलेटिव, कि आप दूसरों को जो हमने डिसीजन मेकिंग की मतलब अथॉरिटी दी है, जो दूसरों को हमने काम डेलीगेट करा है डिसेंट्रलाइज करके, वो लोगों से अगर आप अच्छा करोगे तो आपको प्रमोट कर देंगे, अगर वो लोग में से कोई और अच्छा कर लेगा तो उसको प्रमोट कर देंगे। तो होड़ मच जाती है कि भाई हम सबसे अच्छा काम करेंगे, और उसकी वजह से मतलब लोग सोचते हैं कि अरे वाह हम अच्छा काम करेंगे, हमें प्रमोशन मिला, हमें प्रमोशन मिला, और असली में क्या हो जाता है कि प्रोडक्टिविटी बिजनेस की बढ़ जाती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ आसान हो जाती है। तो ये होता है मैनेजर का काम। मैनेजर ने क्या कहा था, मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बात हुई थी कि मैनेजमेंट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है जो ग्रुप गोल्स होते हैं और जो पर्सनल गोल्स होते हैं दोनों को, कि पर्सनल गोल्स भी आदमी के पूरी हो जाएं और ग्रुप गोल्स भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हो जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स ग्रुप गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रखने पड़ते हैं पर्सनल गोल्स के, लेकिन अगर दोनों हो जाए तो भाई ये तो सोने पे सुहागा है ना, वही बात है। So decentralization makes it possible to evaluate performance at each level, and individual and the department can individually be accountable for the extent of achievement of organizational objectives as well as the contribution of each department meeting the overall objectives can be ascertained. तो ये सब की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल अच्छे से हो जाता है ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सबको मिल जाती है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से हो जाती है कि भाई तुमने करा तुम्हारी गलती, तुमने अच्छा करा तो तुम्हारी वाह भाई। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल अच्छे से हो पाता है, और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वहां पे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये दिक्कत आ रही है ना। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आखिरी डिफरेंस है वो करते हैं, 6 मिनट में हमें चैप्टर खत्म करना है, और फिर अपन निकलते हैं। अरे यार ये उससे वो ना हो जाए। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। डेलीगेशन है कंपलसरी एक्ट है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल फिलोसफी पॉलिसी डिसीजन है, डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट में वर्क करता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे लेस फ्रीडम है अपने डिसीजन, यहाँ पे मोर फ्रीडम है ना। स्टेटस क्या है, टास्क शेयर करने के लिए, यहाँ पे क्या है पॉलिसी डिसीजन की वजह से टॉप मैनेजमेंट के।
स्कोप क्या है, नैरो है, इसका वाइड स्कोप है। इसका पर्पस क्या है, बर्डन, मैनेजर का बर्डन कम करना। इसका पर्पस क्या है, सबऑर्डिनेट का रूल बढ़ाना, ऑटोनॉमी बढ़ाना एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो बस अब ये थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, ये वाले नीचे वाले तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ये बहुत बड़े हैं, ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। Identify the network of social relations which arises spontaneously due to interaction work. It is called informal organization. What does the term span of management refers to? Span of management refers to the number of subordinates that a superior can effectively control, effectively manage, and derive the best outcome from. State any two circumstances under which the functional structure will prove to be an appropriate choice. Two circumstances, देखो ऐसी कंपनी होनी चाहिए या तो जिसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स ना बनाते हो, एक ही प्रोडक्ट में फोकस करके बड़ी सी कंपनी हो। तो इसमें आप ऐसे में ही एक बोल दो कि गारमेंट की कंपनी है जिसमें बड़ी सी कंपनी है, एक ही काम करती है। एक बोल दो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है, बड़ी सी कंपनी है, एक काम करती है, ज्यादा काम में दिमाग नहीं लगाती है ना, सिंपल सी बात हो जाएगी, काम ही खत्म। व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बड़े क्वेश्चन में पढ़ नहीं रहा हूँ, दिमाग खराब होगा। Steps in the process of IDAE होता है identification and division of work, departmentalization, assigning of duties, establishment of reporting and क्या होता है, authority and responsibility नहीं, establishment of reporting relationships, ऐसा कुछ है, ठीक है। वो देख लेंगे थोड़ा। Discuss the elements of delegation, authority, responsibility, accountability। authority है वो डिसीजन मेकिंग पावर, सॉरी अथॉरिटी क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट से बात मनवाने की जो पावर होती है। सो एक तो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, वो भी अथॉरिटी है, और सबऑर्डिनेट से ओबेडियंस मिले, ये भी अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सुपीरियर ने काम दिया है वो सबऑर्डिनेट पूरा करके दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी है कि आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम, वो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। कैन अ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बी टोटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड? नो, नो चांस, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था क्यों। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। हाँ, तो ये यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हर जगह, हर पूरे उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, हर जगह पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, इन ऑल द प्लेसेस, ठीक है। व्हाई डेलीगेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग? क्योंकि भाई देखो, एक आदमी पूरा काम नहीं कर पाएगा, तो भाई उसे करना ही पड़ेगा यार, और वो बेसिस भी है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन डाल देंगे पूरा। इम्पोर्टेंट वो क्या कहते हैं, एक तो काम नहीं कर पाएगा, फिर उससे ग्रोथ भी मिल जाएगी, अगर मतलब मैनेजर मेन काम पे ध्यान देगा अपने, ठीक है, तो रिलीफ हो जाएगा मैनेजमेंट को, वर्कर को फायदा मिलेगा, वर्कर का मोटिवेशन होगा, वर्कर का डेवलपमेंट होगा, नया मैनेजर मिलेगा, पोटेंशियल मैनेजर मिलेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। यही सब लिख दो, बस हो गया। व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। डिविजनल स्ट्रक्चर पहले तो बना देना, एक लिख देना गारमेंट, एक लिख देना क्या लिखोगे, हेयर प्रोडक्ट्स, एक लिख देना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक लिख देना और क्या लिखोगे, क्लोथिंग, एक लिख देना शूज, स्नीकर्स वगैरह वगैरह, जो मन करे लिख दो। और नीचे बना दो R&D, HR, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर साथ में बन जाएगा। एडवांटेज है कि भाई देखो, ये तो अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं बताने लग गया तो ठीक है, चलो बता देते हैं थोड़ा मोड़ा। एडवांटेज
ये है कि पहली बात तो डेवलपमेंट होता है, अच्छा सा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, मैनेजर का अच्छे से डेवलपमेंट होता है, वेरिड स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अब इसी में लिमिटेशन ये हो जाएगी कि लोगों को पिक करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, कि अब देखो इतनी सारी स्किल्स एक आदमी में चाहिए अगर आपको मैनेजर चाहिए पड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, ये एक लिमिटेशन है। और थोड़ी एक्सपेंशन अच्छे से हो जाता है, तो ये एक वो है, मेरिट है। तो ऐसे ऐसे बना के लग दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अभी अभी ऊपर पड़ा है। हियर ऑफ हाउ इज फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फंक्शन के बेसिस में होता है, यहाँ पे डिवीजन के बेसिस में होता है। यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। ये एक कंपनी के लिए अच्छा है, मतलब ये एक प्रोडक्ट वाली कंपनी के लिए अच्छा है, ये बड़ी कंपनी जो एक्सपेंड करना चाह रही है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसके लिए अच्छा है। ठीक है। और थोड़े से लिमिटेशन भी लिख देंगे दोनों पे, हो गया काम। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। सॉरी, हाँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर में विद इन द डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग एक ही आदमी एक ही फंक्शन पे काम करते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में विदाउट द डिपार्टमेंट, मतलब अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स अच्छा से कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि वो दिक्कत नहीं आती है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आती है कि भाई देखो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन करने की दिक्कत वाली नहीं आती है। तो ऐसे हो जाता है। बस हो गया चैप्टर खत्म। 3:13 हो गए, 3:13 हो गया। 1.5 घंटे का बन गया, एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड। और वो भी लिख दें, रैशनलाइज्ड 2023-24। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वन करने के लिए थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि अभी बहुत बेकार बेकार चैप्टर हैं। स्टाफिंग बचा है, डायरेक्टिंग बचा है, कंट्रोलिंग बचा है। कंट्रोलिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। स्टाफिंग डायरेक्टिंग में दिमाग खराब होगा, बट देखो दिमाग खराब करना भी पड़ेगा, जरूरी है दिमाग खराब करना, है ना। करेंगे दिमाग खराब, आधा घंटे का ब्रेक लेकर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।